આ મેચ ચાલુ કરાવજો. યસ ભાઈ બાકીના બધા બહાર નીકળી જાજો. આમાં બહાર છે ટુકડાના પ્લેયરોને નમ્ર વિનંતી છે કે અમે બાઉન્ડ્રીની બહાર જશે. ટુકડાના પ્લેયર પ્લીઝ બાઉન્ડ્રીની બહાર જશો. અને હવે નવો મેચ ચાલુ થાય છે એટલે કોઈ બાઉન્ડ્રીની અંદર ના રહે. અને ગોપાલભાઈ જોશી જો હોય તો આવે અહીંયા. ગોપાલભાઈ જોશી રાણાવાવ કોમેન્ટ્રીમાં. ભાઈ બ્રિજેશ આવી જા. બ્રિજેશ ભુવા મેન ઓફ ધ મેચ માટે છે એ 1100 રૂપિયા તો પોપટભાઈ ટુકડિયા તરફથી છે. અને એક સુંદર ટ્રોફી છે સુરત અબોટી બ્રહ્મ સમાજ તરફથી ને એક મેડલ પણ આપવામાં આવે છે. એટલે મેન ઓફ ધ મેચ માટે તો બહુ સરસ ઇનામ છે. આખી ટીમને પરશુરામને સંજયભાઈ રામભાઈ કોઠારી વલસાડ તરફથી 1100 રૂપિયા ટીમને. પરશુરામ 11 ને વિજેતા ટીમને સંજયભાઈ કોઠારી વલસાડ તરફથી 1100 રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર આખી ટીમને. અહીંયા બોર્ડ તરફથી બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી નાખવામાં આવ્યું છે. ગોપાલભાઈ કોઠારી છે, અહીંયા સંજયભાઈ કોઠારી છે અને પોપટભાઈ ટુકડિયા જે મેન ઓફ ધ મેચ માટે આખી ટુર્નામેન્ટમાં આપે છે. એ સુરત અબોટી બ્રહ્મ સમાજ તરફથી ટ્રોફી પણ આપવામાં આવે છે. બ્રિજેશ બુઆ આવી જાય. આ મેચ આપણે ચાલુ કરીએ. લાલજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ઘડીક વાર કોમેન્ટ્રીમાં ધડધાટી બોલાવો. અને ઓલા જોશીભાઈ હતા રાણાવાવ વાળા ગોપાલભાઈ જોશી આવી જાય. ગોપાલભાઈ જોશી કોમેન્ટ્રીમાં સાથ દેવા માટે આવે ઘડીક વાર કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં. અને હવે કોમેન્ટ્રીમાં લક્ષ્મણભાઈ લાખાણા કોમેન્ટ્રીમાં ઈ પેલા બ્રિજેશભાઈ આવ્યા છે. બ્રિજેશ ભુવા આવી જાઓ. બ્રિજેશભાઈ જોરદાર મેચ જીતા. હવે તમે પેલા મેન ઓફ ધ મેચ લઈ લ્યો. 1100 રૂપિયા રોકડ પુરસ્કાર છે પોપટભાઈ ટુકડિયા તરફથી. એક સુરત અબોટી બ્રહ્મ સમાજ તરફથી સુંદર ટ્રોફી છે અને સાથે સાથે એક મેડલ છે. 1100 રૂપિયા संजयभाई तरफથી છે. संजयभाई रामभाई कोठारी तरफથી. यहाँ पर नई ओवर की शुरुआत हो उनसे पहले हम मैन ऑफ द मैच दे देते हैं ताकि कैमरामैन यहाँ पर फोकस कर सके. अंपायर से नम्र गुजारिश है केवल 1 मिनट के लिए गेम को थोड़ा ठहराइए. जल्दी से ब्रिजेश बुआ यहाँ पर आ जाए ताकि फोकस आपके ऊपर कर सके. कैमरामैन फोकस स्टेज के ऊपर करे. आखिरी मैच शुरू है तक आखिरी से पहली मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाता है ब्रिजेश बुआ को, जिन्होंने काफी शानदार बॉलिंग और शानदार बैटिंग करके अपनी टीम को अग्रसर किया और जीत की ओर ले चले. हंसराज भाई टुकड़िया और प्रेमजी भाई टुकड़िया जिनके सुबह से मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार दिया गया. कंटिन्यू पुष्पा झुकेगा नहीं शाला. सूरत वाला 3 महीना थी प्रेक्टिस करे. फोकस करजो पाछो सामेनो कैमरो वीआईपी टेंड पर. पोपट भाई अहिया इनाम आपे छे जे 1100 रुपयानु. हवा में और विकेट का पतन हुआ है. विकेट का पतन हुआ है. आउट हुए है बल्लेबाज. अहिया फोकस करजो वीआईपी टेंट पर.
હે ભરતભાઈ, આ સુરત વાળા 3 મહિનાથી પ્રેક્ટિસ કરે છે, કેવા ધબધબાવે નહીં જોવાનું છે અમદાવાદ વાળાને, કે અમદાવાદ વાળા સુરત વાળાને ધબધબાવે. એ ભાઈ કાનજીભાઈ હાલોલ તરફથી જે ટુકડા માટે ઇનામ હતું ચોકા અને છક્કા, એમાં વિકેટ ને કેચ ટોટલ 5600 રૂપિયા અહીંયા ટુકડા 11 ના કેપ્ટન ને રોકડા કરી દેવામાં આવ્યા છે. 5600 રૂપિયા. કાનજીભાઈ નો આભાર. ગોપાલભાઈ ના હાલો આગળ હિસાબ કરી નાખીએ. 12,000 આપી દો હાલો, વધઘટ સમજી લો. હું હજી બ્રિજેશભાઈ વિવાદ છે અહીંયા. હા ચોકાના 200 ને છક્કાના 500. હાલો ચોકાના 200 હતા ને છક્કાના. હા એ ધવાડો કર્યો એને. હાલો ત્યાં જાઓ, હાલો ત્યાં જાઓ. હું જરાક ગોપાલભાઈ કોઠારી આવશે કે? ગોપાલભાઈ અને ગોપાલભાઈ જોશી આવી જાય. ગોપાલભાઈ જોશી મારો વાલીડો આવી જાઓ. પેલા ખીમજીભાઈ બચ્ચન, હા મારો વાલીડો, હા. પછી આપણે યુટ્યુબ ઉપર બચ્ચનનો ડાન્સ કરવો છે. આપણે અત્યારે ચા પીવડાવ્યા રાખો, એ જોઈ લે મારો વાલીડો. થાળીયું એ ફેરવવી છે પછી. ये मैच दूसरा शुरू होने जा रहा है. लक्ष्मण लाखाड़ा આવી ગયા. ગોપાલભાઈ આવી ગયા. ગોપાલભાઈ જોશી. કેમ કે હારો મેચ જાય એટલે ગોપાલભાઈ તમને ખબર છે કે આપણું ચાર્જિંગ થોડુંક હળવું થઈ જાય. जो पुरस्कार है सिक्सर जो लगाए थे उनके गोपाल भाई कोठारी की ओर से 1100 रुपये है. परशुराम को संजय भाई कोठारी की ओर से वलसाड. ये मैच शुरू हुआ है. ભરતભાઈ પીવો ને ચા? નાખી દો ભરતભાઈ, નાખી દે. હા નાખી દે. सूरत टाइटंस जिनके 2 विकेट गिरे हैं पावर प्ले में, 12 रन के ऊपर 2 विकेट गिरे हैं. यहाँ ये मैच सूरत टाइटन और अन्य 11 अहमदाबाद के बीच में. सूरत टाइटन जो बल्लेबाजी के ऊपर है, अहमदाबाद 11 अंजनी 11 जो फील्डिंग के ऊपर है. कमलेश भाई सियानी जो गेंदबाजी में है. ये कमलेश भाई सियानी जो मुख्य जिम्मेदारी संभालते थे
अहमदाबाद में जब टूर्नामेंट हुआ था तब कमलेश भाई सियाणी जो जिन्होंने अच्छा संकलन किया था, फिलहाल राउंड विकेट। ये गेंद बहुत ही सुंदर गेंद, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंद और तीसरे विकेट का पतन हुआ। जबरदस्त गेंद थी, आगे आए थे और क्लीन बॉल के रूप में विकेट का पतन हुआ। देखिए विश्वास साफ नजर आ रहा है। एक्शन रिप्ले में देखते हैं हम संजय जो कमलेश भाई सियाणी जो आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकेंगे और लाइव जो YouTube के ऊपर मैच हो रहा है जिसमें भी आप देख सकते हैं। 12 रन के ऊपर तीसरा झटका लगा है कमलेश भाई जिनको सफलता मिली है। गोपाल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल भाई 2 ओवर 4 गेंदों में 12 रन हुए हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और अब जब तीसरा ओवर आएंगे तो कंटिन्यू कमेंट्री सुनेंगे गोपाल भाई जोशी के शब्दों में। हल्के से यहां वाइड का संकेत देते हुए अंपायर और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन सूरत टाइटंस जिनको जीतने का जो सुंदर स्ट्रोक गेंद जा रही है उधर फील्डर फील्ड करते बहुत ही सुंदर गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद और इनके साथ ही क्लीन बोल्ड। फिर से एक बार कमलेश भाई सियाणी जिनकी ये गेंद निकली है, बहुत ही बढ़िया गेंद निकली है। आप देख सकते हैं क्या सनसनीपूर्ण गेंद थी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद और विश्वास झलक रहा है। ये सफलतम ओवर समाप्त हुआ, सफलतम ओवर रहा है कमलेश भाई सियाणी के द्वारा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद और जमीन के ऊपर दंडवत प्रणाम किया है। कितना विश्वास है देखिए कमलेश सियाणी, प्लस टू परफेक्शन और पूरी तरह से जड़ में डाली गई गेंद थी और सफलतम ओवर समाप्त हुआ है। गोपाल भाई अब हमारे साथ जुड़ रहे गोपाल भाई जोशी जो राणावाव में जो टूर्नामेंट हुआ था मंजी भाई कुछड़िया के द्वारा 3 साल टूर्नामेंट चला था और उनमें मुख्य कमेंटेटर रहे थे गोपाल भाई जोशी। अब उनकी आवाज। नमस्कार फिर से एक बार। सूरत टाइटन काफी नाजुक परिस्थितियों से गुजरती हुई इस बीच गेंदबाज तैयार है। एक अच्छी गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में बगैर किसी रन के साथ। काफी अच्छी गेंद रही अक्षय लग्जीर की ओर से। फिर एक बार अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट सीधा मिडॉन की जानिब खेला। जब तक फील्डर गेंद को उठाते थ्रो करते हैं तब तक एक रन बनाने का दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा पर्याप्त समय था और इन एक रन के साथ सूरत टाइटन 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला और गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद जिन्होंने एक आसान सा कैच लपका। तो इस तरह सूरत टाइटन 11 को लगने वाला पांचवा झटका। नए बल्लेबाज धर्मेश उसको पॉइंट की जानिब खेला और खेलते ही निकल पड़े एक रन के लिए। तो इन एक रन सूरत टाइटन के खाते में जोड़ दिया जाए तो 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर
खेल का कुल मिलाकर चौथा ओवर प्रगति पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, अच्छी गेंद, वाइड का इशारा, शायद अपना बल्ला जमीन के साथ बहुत जोर से टकराया और अंपायर का इशारा वाइड का। तो इन एक रन अतिरिक्त के साथ सूरत टाइटन 11 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अक्षय फिर एक बार अच्छी गेंद और अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पर सूरत टाइटन 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। સત્તર રન 5 વિકેટ. कमलेश आए, गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, सीधा बॉलर के सर के ऊपर में, जो एक क्रिकेट की दुनिया में सेफ जोन माना जाता है, वहीं पर खेल दिया। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया और इन 1 रन के साथ 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर सूरत टाइटन। कमलेश सियानी फिर से एक बार तैयार, 7-8 कदमों का रन अप उनका। आए, अंपायर की बगल से गुजरे, गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, मिड विकेट की जानिब खेल दिया। अंपायर का दोनों हाथ हवा की ओर लहराते हुए 6 रन का इशारा। तो इस इनिंग का शायद पहला बड़ा शॉट होगा। तो इन 6 रन के साथ सूरत टाइटन तेजी के साथ आगे बढ़ती है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कमलेश तैयार, थोड़ा अपना फील्ड में परिवर्तन बनाते हुए फिर से एक बार तैयार है। 7-8 कदमों के रनअप के साथ आए, अंपायर की बगल से गुजरे, गेंद की और फिर एक बार हवा में खेल दिया। 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन दोनों के बीच में टप्पा खाती हुई गेंद लुढ़की। जब तक फील्डर उठाते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा समय 2 रन का, और इन 2 रनों के साथ 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर सूरत टाइटन 11। कमलेश सियानी, गेंद की अच्छी गेंद, बल्ले के बाहरी किनारे से टकराती हुई वहीं पर लुढ़की। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया बगैर किसी रन के साथ। गेंद फिर से एक बार कमलेश सियानी के पास, अपने कोटे के दूसरे ओवर का 5वां गेंद लेकर फिर एक बार खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से। अंपायर का दोनों हाथ हवा की ओर उठता हुआ 6 रन का सिग्नल, और इन 6 रनों के साथ सूरत टाइटन तेजी के साथ आगे बढ़ी है 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। खेल का कुल मिलाकर 5वां ओवर प्रगति पर। पिछले 7-8 गेंदों में थोड़ी स्पीड बढ़ाई है सूरत टाइटन 11 के बल्लेबाजों ने। कमलेश सियानी फिर से एक बार आए, फिर एक बार हवा में खेल दिया। 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, और इस बार एक आसान सा कैच, अंपायर का इशारा आउट। तो इस तरह से लगने वाला 6ठा झटका, और इसी के साथ कमलेश सियानी की ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद सूरत टाइटन 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कमलेश जिन्होंने 2 ओवर डाले, 17 रन दिए, 3 सफलता हासिल की। और अक्षय लकदीर जिन्होंने
एक ओवर डाला, 3 रन दिए और 1 सफलता जिनके खातों में। इस बीच अक्षय लखदेर की पहली गेंद बगैर किसी रन के साथ। फिर एक बार गेंद को खेला लेकिन गेंद वहीं पर लुढ़की। जब तक गेंद को फील्डर उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन बनाने का दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा अवसर, और इन 1 रन के साथ सूरत टाइटन 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अक्षय अंपायर की बगल से गुजरे, गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर की बगल से खेल दिया। जब तक बाउंड्री से आते फील्डर गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन बनाने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। तो इन 1 रनों के साथ सूरत टाइटन 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार जबरदस्त शॉट, हवा में गेंद के नीचे फील्डर, और शायद वो मिस कर गए और गेंद शायद हो सकती है बिल्कुल सीमा रेखा के पास से दोबारा रोकी, और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 2 रन बनाने का अवसर। 37 6 विकेट के नुकसान पर सूरत टाइटन। खेल का कुल मिलाकर 6ठे ओवर की आखिरी गेंद। फिर एक बार जबरदस्त स्ट्रोक लगाने का प्रयास लेकिन कामयाब नहीं हुए, और इसी बीच अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 6 विकेट के नुकसान पर सूरत टाइटन। સેકન્ડ રાઉન્ડનો શિવ મોકર અને ટુકડા ટાઈગર આના પછીનો એટલે બે ટીમના કેપ્ટન હાજર છે. આના પછીનો મેચ જે છે એ C11 અને ટુકડા ટાઈગર 11 બંનેના જે મેચ હોવાથી બંનેના પોતપોતાના ખેલાડીઓને હાજર રાખે અને બને શક્ય હોય તો આપણા કોમેન્ટ્રી બોક્સની બાજુમાં આવી જાય. C11 यानी कि राजकोट से बिलोंग करते हैं, और टुकड़ा टाइगर जो कि टुकड़ा से बिलोंग करते हैं। इस बीच दोनों का मुकाबला इस मुकाबले के बाद खेला जाएगा वो C11 सॉरी माफ कीजिए C11 मोकर राजकोट। 37 सूरत टाइटन 7 विकेट के नुकसान पर। खेल का कुल मिलाकर 7वां ओवर प्रगति पर। प्रकाश टुकड़िया 10 से 12 कदमों का रनअप है। छोटे कदमों के साथ अपनी फील्ड को सजाते हुए अपने कप्तान हरीश आए हैं, सॉरी नए बल्लेबाज प्रकाश, जिन्होंने दौड़ना शुरू किया, आए अंपायर की बगल से गुजरे, उस गेंद को मिड विकेट की जानिब खेला। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, और अच्छा प्रयास वहां पर रोकने का। तो इस जब तक रोकते गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। तो इन 2 रनों के साथ सूरत टाइटन 39 रन 7 विकेट के नुकसान पर। प्रकाश टुकड़िया फिर एक बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, और इन 1 रन के साथ सूरत टाइटन 40 रन। खेल का कुल मिलाकर 7वां ओवर। प्रकाश आए, गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन 1 रन से ज्यादा रन नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर फील्डर पहले से ही तैनात। प्रकाश एक बार अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर पहले से मौजूद। 1 रन बनाने का दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर, जो कि हरीश 3 रन बनाकर खेल रहे हैं और चंद्रेश है वो 4 रन
बनाकर अभी दोनों बल्लेबाज 4-4 रन बनाकर खेल रहे हैं। 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर सूरत टाइटन। प्रकाश अपने कोटे के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर उसको स्क्वायर लेग की जानिब खेला, वहां पर थोड़ी मिसफील्ड हुई, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। जब तक बाउंड्री से गेंद को फील्डर उठाते थ्रो करते तब तक 2 रन बनाने का अवसर, और इन 2 रनों के साथ सूरत टाइटन 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर। કેટલા કર્યા સુરત વાળે? 44 રન છેલ્લી ઓવર છેલ્લી ઓવર છે. હાલો દમ લગાવો ભાઈ, 3 મહિનાની પ્રેક્ટિસ કરી. હાલો વાઈડ 45. માર્યો ના લાગ્યો. મોરા પડી ગયા, કોઈ રૂપિયા આપતા નથી. આપો આપો કઈક. આવી ગયા ભાઈ આનંદભાઈ મોકરિયા. જવા દીધો. ઓ 6 રન હો ભાઈ. હાલો હતું કઈ ઇનામ નતું? 6 રન 6 રન 51 થયા ને? 4 બોલ બાકી છે ઇનિંગના. લીગ મેચમાં આ છેલ્લી મેચ છે આપણી. આના પછી C11 મોકર એટલે કે રાજકોટ અને ટુકડા ટાઈગરની વચ્ચે સેકન્ડ મેચ રમાશે. એ મેચ જે જીતશે એ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સીધું જશે. ગજબ હો ભાઈ, ઝાલી ઝીકીને દીધો પણ રોકી લીધો. બહુ સરસ. 53 રન 3 બોલ બાકી. લીધો સીધો હાથમાં અને લોતો પાડ્યો ભાઈએ. મગરે મોં ખોલ્યું પણ મગરના મોંમાં દડો ગયો નહીં. રામભાઈ લાગે આપણે. આપણે ભૂરાભાઈ ટોકડિયા ગ્રાઉન્ડમાં હોય તો આ પાણીના જગ થોડાક જોડાવી લ્યો. તમારી કમિટીને કહો કે ભાઈ થોડુંક આ પાણીનું જે કપ ખાલી થઈ ગયા છે એ ચેન્જ કરાવી દે. ઓકે થેન્ક યુ સાંભળી લીધો ભાઈ. ભૂરાભાઈ કમ્પ્લીટ એક્ટિવ છે એમ. અને ક્લીન બોલ્ડ દાંડિયા ઉડાડી દીધા. હજી તો કોઈ પાડી નથી નાખ્યા. પાડે કુંડે એ રાહ જોવાની છે આપણે. હાલો ફટાફટ ફિલ્ડિંગ ગોઠવો અને કેટલા રન કરવાના? 55 નેચ કરવા દેવાના કે કરવા દેવાના છે હવે તમારી મહેનત ઉપર ડિપેન્ડ છે સુરત વાળાઓ.
રાઉન્ડમાં જે બહારથી કોઈ પણ મહેમાન આવ્યું હોય એ આવીને ટોસ કરાવવા માટે અહીંયા આવો અને આ બધા ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારો. પેલો દોડો ને દાંડીઓ ઉડાડી દીધું. પડી નહીં. આ બેટેથી માર્યો કે બોલે માર્યો કે કઈ સમજ જ ન પડી. દાંડી પડી નહીં, 1100 બચી ગયા. 1100 રહી ગયા. બાલ 1100 પૈસા. હવે આ સુરત ટાઇટનમાં એક એવો બોલર છે જે એક ઓવર નાખવામાં 20 મિનિટ લે. મહા રનર એમ ધર્મેશભાઈ આપણે. બેટ્સમેન રેડી જ રહેજો અને બોલરને રેડી જ રહેવાનું. હાલો, 2 બોલમાં 2 વિકેટ. 2 બોલમાં 2 વિકેટ. ના ના, હજી ડિસિઝન કઈ આવ્યું નથી. આપી દીધું આઉટ. આઉટ આઉટ. હા, હેટ્રિક ચાન્સ. હેટ્રિક નો કોઈને ઇનામ છે ભાઈ? એ કંઈક હોય તો કહેજો મારા વાલીડાઓ. कैमरामैन यहाँ फोकस करे. कैमरामैन यहाँ फोकस करे. अब लीग मैच समाप्त हो गई है, आखिरी मैच चल रही है. उसके बाद जो भी विनिंग टीम है वो विनिंग टीम के साथ टकराएगी और लूजर टीम के साथ टकराएगी. विनिंग टीम को एक इसके अलावा और चांस मिलेगा, लेकिन अब जो लूजर टीम होगी वो जो भी टीम हारेगी वो नॉकआउट राउंड है, वो बाहर हो जाएगी. तो अब लीग मैच के बाद जो टकराने वाली टीम है वो है CV11 मोकर राजकोट और टुकड़ा टाइगर के बीच अब टॉस होने जा रहा है. तो मेहरबान ध्यान देकर देखिए किंग और ये टॉस कौन मांगे छे. ओके, तो लीजिए आपके सामने टुकड़ा टाइगर अपनी मांग रखते हुए. किंग यहां पर CV11 ने पहले बैटिंग लेने का निर्णय किया है. હાલો, ધર્મેશ ભુવાએ સ્કેચ પકડી લીધો છે. 3 વિકેટ પાડી દીધી છે અમદાવાદ વાળાઓની. સુરત વાળા ફૂલ ફોર્મમાં છે અને જે આ 3 મહિનાની પ્રેક્ટિસ કરી છે એ રંગ લાવી છે સુરત વાળાઓની. હા, હાલો ભાઈ, 2 ઓવર કેટલા રન થયા છે? ધર્મેશભાઈ આવી ગયા છે. કેમેરા મેન પાસેથી જોજો રનિંગ લે. ધોડો જો સીધો ચાલી ઝીકીને ફૂલટો દીધો.
ઉત્સાહ બહુ છે સુરત ટાઇટન્સમાં. પણ અમદાવાદ વાળા એમ જ કહે ને કે ભાઈ અમે અમદાવાદ થી થોડો એમને ધક્કો ખાધો છે. નીકળી જાય હો ભાઈ. 4 રન. ટ્રાય હારી કરી હતી, દડો હાથમાં આવ્યો નહીં. બહુ જબરદસ્ત બોલિંગ ધર્મેશ ભુવા દ્વારા. 55 કરવા ના હજી 9 રન 3 વિકેટ અને બીજી ઓવર હાલે છે હજી. હજી રિઝલ્ટ 50-50 છે, કંઈ કહેવાય નહીં. હાલો ભાઈ, ઓવર 3 ઓવર 9-10 રન થયા હે. સોરી, 2 ઓવર ને 9-10 રન થયા છે. 11 રન થયા છે અને 55 કરવાના છે. ના ત્યાંથી બોલે તો સ્કોર ખબર પડે ને. કોણ બોલો? બંધ થઈ ગયો? ના, તેલ નાખ્યા નથી તો તેલ થઈ ગયો. અરે ભાઈ, નો બોલ છે ભાઈ. હતા આમ નામ કરીએ તો ભાઈ પૂરું થઈ જાય. હો ભાઈ, ફ્રી હિટ આવી. લગભગ આ ટુર્નામેન્ટની પહેલી ફ્રી હિટ છે કે આવી હતી ક્યારેય? ના, મારા ધ્યાનમાં કોઈ એવી છે નહીં. ચોથી. આપણે સાહેબ બેઠા છે એમ કહે છે કે ચોથી ફ્રી હિટ છે. हवा में खेल दिया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और इसके साथ चौथा झटका. ના, ફ્રી હિટ હતી આ. फ्री हटे આમાં આઉટ થાય નહીં. આઉટ ના આવે. આમાં જીમ રમવું એમ રમાય એમ. રન આઉટ થાય. રાણો રાણાની રીતે. હા, હરીશ શોટ હારો માર્યો છે. હવે થ્રો આવ્યો આમાં, ગોલી પણ જાણે બંદૂકમાંથી ગોલી ના નીકળી હોય. કેટલા કરવાના કેટલા છે? ઓકે, 6 ઓવરમાં ટેસ્ટ કરે તો ઓકે, ભલે હાલો, વાંધો નહીં. હાલો જાહેરાત હાલો કરાવી દો. 33 બોલમાં 35 રન ઘટે. ભાઈ 6 ઓવરની અંદર જો અમદાવાદ છે એ રન ચેસ કરી લે તો પ્રતાપ ખીમજીભાઈ ઓડેદરા તરફથી અમદાવાદ 1100 રૂપિયાનું ઇનામ. ભાઈ અમદાવાદ 11 જો 6 ઓવરની અંદર આ મેચ પૂરો કરે તો અમદાવાદ વાળા પ્રતાપભાઈ ખીમજીભાઈ કુછરિયા તરફથી 1100 રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. નહીં થાય.
લાલજીભાઈ 8નું કીધું હોત તો બરાબર હતું. આમ ફિલ્ડિંગ સારી છે બધાની જોડીને 3 ઓવર પૂરી થઈ ગઈ છે અને સ્કોર છે 23 રન. વિકેટ 3 પડી ગઈ છે. नए गेंदबाज के रूप में मनोज मोकरिया और जिसका सामना करेंगे भरत, जो कि 14 रन बनाकर खेल रहे हैं. एक अच्छी गेंद, सम्मान दिया और लाजम क्रिकेट में अच्छी गेंद को सम्मान ही देना बनता है. फिर एक अच्छी गेंद, अपील और अंपायर की उंगली हवा की ओर. પણ સ્ટમ્પ નથી પડ્યો. આપણે સ્ટમ્પ પાડવાની વાત છે તો 1100 રૂપિયાનું ઇનામ આવે. તાકીને જવા દો ભાઈ. અમારા ધમો પાડવો હોય તો પાડી દો. એટલે ફાસ્ટ બોલર છે ને ઈ. હાલો રેડી જ રહેજો બીજો બેટ્સમેન. અક્ષય લગધીર નવા બેટ્સમેન તરીકે મેદાન ઉપર ધીમે ધીમે આવી રહ્યા છે. મનોજ મોકરિયા એની પહેલી ઓવરની ત્રીજો દડો ફેંકવા જઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 2 દડા ફેંક્યા છે, કોઈ રન નથી આપ્યો અને એક વિકેટ મેળવી લીધી છે. મનોજ ભાઈ તમારે પુરસ્કાર આપવો હોય તો કંઈક હરવો કરો. તમે હા આવા અઘરા પુરસ્કાર રહેવા દીજો એમ. આ બેટ્સમેન ને બોલર ને બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય એમ. कमलेश सामना करेंगे मनोज मोकरिया का. इस बीच अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा ड्राइव सीधा बॉलर की जानिब और खुद गब्बर ने गेंद को उठाया बगैर किसी रन के साथ. 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर खेल का कुल मिलाकर चौथे ओवर की 5वीं गेंद. इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला है. पहले रन के लिए निकल पड़े हैं और हो सकता है दूसरे रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर से मना किया अक्षय लगधीर ने और इन 1 रन के साथ 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर खेल के कुल मिलाकर चौथे ओवर की आखिरी गेंद. अच्छी गेंद, અક્ષય ભાઈ 1 6 મારે તો અમદાવાદ હેડ ઓફિસ તરફથી શું નામ હરેશભાઈ લગધીર તરફથી 1100 રૂપિયા ઇનામ. 1 6 ઉપર અક્ષયભાઈ 6 મારે તો હરેશભાઈ લગધીર હેડ ઓફિસ તરફથી 1100 રૂપિયા ઇનામ. આ એટલે આ તમારો જે ચેલેન્જ છે એ સેફ છે નરેન્દ્રભાઈ. 24 દડામાં 30 રન કરવાના છે. અંજલિ 11 ને कमलेश सियानी गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में बगैर किसी रन के साथ. वल्लभ गुमलिया अपने कोटे का दूसरे ओवर की दूसरी गेंद. कमलेश सियानी तैयार खेलने के लिए आए. गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन 1 रन से ज्यादा रन नहीं मिलेंगे वहीं पर
और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कमलेश को। तो इन एक रन के साथ 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वल्लभ घुमलिया, अक्षय लकदीर ने कवर की ऊपर से खेल दिया, गेंद सीमा रेखा का सीना चीरती हुई 4 रन के लिए। कमलेश भाई 6 मारे ने। तो इन 4 रनों के साथ कमलेश भाई 6 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खेल का कुल मिलाकर 5वां ओवर प्रगति पर। कमलेश भाई अगर 6 मारे છે તો રાજુભાઈ પ્રેમજીભાઈ સિયાણી તરફથી અમદાવાદ કેટલા 501 રૂપિયા, એટલે 500 ની નોટ આપી દેશું। अक्षय सामना करेंगे वल्लभ घुमलिया का, उठाकर मारने का प्रयास, गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगती हुई वहीं पर लुढ़की। फील्डर ने गेंद को उठाया, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 1 रन के साथ 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। પબ્લિકે સાંભળી લીધું છે, પુરસ્કાર થોડાક હળવા કર્યા છે। वल्लभ घुमलिया, कमलेश को उठाकर मारने का प्रयास, दूर दूर तक गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद वहीं पर लुढ़की। विकेट कीपर ने गेंद को उठाया बगैर किसी रन के साथ। પણ આ બેટમાં સડે તો 500 ની નોટ પાકી જતી હો। कमलेश सामना करेंगे वल्लभ घुमलिया का, उस अपने कोटे के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, और हल्का सा बल्ला लगाते हुए निकल पड़े 1 रन के लिए। और अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 18 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता अभी भी। कमलेश सामना करेंगे मनोज मोकरिया का। ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर के दोनों हाथ कमेंट्री बॉक्स की ओर लहराते हुए व्हाइट का सिग्नल। और इन 1 रन अतिरिक्त के साथ અને આ ધર્મેશભાઈ ભુવા જો વિકેટ લે તો 500 રૂપિયા આપણા તરફથી હો ભાઈ। હરવો છે ને તમે આ પુરસ્કાર? હાલ હાલ વિકેટ એટલે 500। ओहो, फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में बगैर किसी रन के એટલે साथ। 100 વિકેટ લે તો 3000 सीधा, 5 ले तो 55, 4 ले तो 2000, 1 ले तो खाली 500। कमलेश जो कि 14 गेंदें खेलकर 10 रन बनाकर अभी भी मैदान पर झूम रहे हैं। फिर एक बार लंबा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन दूर दूर तक कहीं संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। और गेंद विकेट कीपर के दस्तान से होती हुई फिर एक बार દડો ખાલી જાય તો- धर्मेश के पास। દડો ખાલી જાય તો મારી ધડકન તેજ થઈ જાય કે 500 ની નોટ જાહે આગળી। 33 रन पे रुका हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। हुआ धर्मेश हमसे दूर भागते हुए आए, अंपायर की बगल से गुजरे, गेंद की उठाकर मारने का प्रयास। शॉर्ट फॉर्मेट पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके हाथ में ठीक तरह से बैठी नहीं और गेंद लुढ़कती हुई सीमा रेखा के शायद बाहर चली गई। अंपायर का इशारा 4 रनों का। तो इन 4 रनों के साथ 37 4 विकेट के नुकसान पर अंजलि 11। કમલેશભાઈ 6 મારે તો દિલ્હી અંજલિ કુરિયર તરફથી 1100, એટલે એક 6 ઉપર 1600 રૂપિયા। કમલેશભાઈ હવે તો કંઈક કરવું જોઈએ હો તમારે। हुआ धर्मेश कमलेश के लिए इस बार अरे उठाकर मेरे। खेलने का प्रयास, शॉर्ट कवर के स्थान पर गेंद को खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन उनके सर के ऊपर से गई, वहां पर थोड़ी मिसफील्ड हुई। और उस मिसफील्ड का जबरदस्त फायदा उठाते हुए 2 रन इत्मीनान के साथ पूरे किए। और इन 2 रनों के साथ अंजलि 11 का स्कोर 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
બોલો ભરતભાઈ. આ કમલેશભાઈ ને અટાણે મોકો છે. દિલ્હી અન્ની કુરિયર તરફથી છક્કો લગાડે એટલે 1100 ની રોકડી છે. એક 500 છે, બીજા ભાઈ કમલેશભાઈ ઉપર ઇનામોનો વણઝાર લાગી રહ્યો છે, તો એટલે એ ટ્રાય ચાલુ કન્ટિન્યુ રાખો. એટલે ગોપાલભાઈ એક જ છક્કો છે ઈ 1600 રૂપિયામાં. એટલે જ કહું છું ભરતભાઈ કે કમલેશભાઈ ઉપર ઇનામોની વણઝાર લાગી રહી છે, અને કમલેશભાઈ છે એ છેલ્લા 8 થી 10 બોલની અંદર એવા એના પ્રયાસો છે કે દડો કદાચ આ લક્ષ્મણે 5000 લઈ લીધા ને કમલેશભાઈ ને પૂરો મોકો છે કે 1600 આ લઈ લ્યો. કમલેશભાઈ લૂંટી લ્યો. धर्मेश बुआ कमलेश भाई के लिए जो जो लोग स्क्वायर कट कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के साथ અને ગોપાલભાઈ કોઈ ચોકાનું ઇનામ છે કમલેશભાઈ નું? ના હજી સુધી કોઈ અહીં આવ્યું નથી ભરતભાઈ. આ તો ભાઈ કમલેશભાઈ છક્કાની ટ્રાય મારો ભાઈ. ટેકનિકલ બેટ્સમેન છે ભાઈ. ચોકા એટલા સરસ મારે તો દિલ્હી વાળાને ને કયો કે ભાઈ કંઈક આપવું જોઈએ ભરતભાઈ. કઈ નહીં તો ફૂલની પાકડી આપો યાર કંઈક. કઈ નહીં તો ભરતભાઈ દિલ્હી વાળા 200 રૂપિયા રાખી દો ચોકાના. કઈ ખોટ નથી એમાં. ચાલો નેક્સ્ટ. 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर अक्षय लखदीर 6 रन बनाकर सामना करेंगे. कमलेश बुआ का उठाकर मारा है, गेंद के नीचे एक फील्डर आता हुआ, लेकिन शायद वो मिस कर जाएंगे और गेंद थोड़ी सीमा रेखा के अंदर रोक ली. 2 रन बनाने का अवसर और इन 2 रनों के साथ 45 रन 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर. તો 10 કરવાને હવે કેટલા કરવા? 11 માં 10 11 માં 10 થઈ જાય એમ છે ભરતભાઈ. 8. આહાહા. મને એવું લાગે કે દડો કારો થઈ ગયો નથી, દેખાતો નથી. अक्षय सामना करेंगे और इस बार सक्सेस हुए. जो खिलाड़ी खड़े थे आगे उनके सर के ऊपर से, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर पहले से तैनात, और जब तक गेंद को उठाते तब तक 1 रन का अवसर. अक्षय कमलेश सॉरी, और फिर एक बार फुल टॉस गेंद, उसको खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं भरत भाई, और 1 रन के साथ 47 4 विकेट के नुकसान पर अक्षय सामना करेंगे मनोज मोकरिया का है. इस बार कवर के ऊपर से गेंद को खेला, डीप कवर से खिलाड़ी गेंद को उठाते थ्रो करते, तब तक 1 रन का अवसर, और इन 1 रन के साथ 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर अंजलि 11. 7 દડાની અંદર જીતવા માટે અંજલિ 11 ને 7 રનની જરૂર છે. कमलेश भाई फिर एक बार अच्छा शॉट खेलते ही निकल पड़े. 1 रन के लिए रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन उसको हल्के में लिया. આપણે જે પણ ગેટ પાસે ગાડી હોય એ જરા ગ્રાઉન્ડ વાળાનો કોલ આવ્યો છે, તો થોડીક બહારની સાઈડ રખાવી દેશો પ્લીઝ. જે પણ આ ગેટ પાસે ગાડીઓ પડેલી છે એ થોડુંક બહારની સાઈડ વ્યવસ્થિત પાર્કિંગ કરવા વિનંતી. એમ अहमदाबाद की गलियों में आज रौनक नजर आ रही है. अंजनी 11 अहमदाबाद जो जीत के नजदीक आ रही है, लेकिन 6 गेंदों में 6 रन बनाने होंगे. રસાકસી છે હો ભરતભાઈ. 6 गेंदों में 6 रन चाहिए. रसाकसी कसाकसी 6 गेंदों में 6 रन चाहिए. आज सभी मैच रोचक रहे हैं. जो भी मैच टुकड़ा के काफी बढ़िया रहे, और यहाँ डायरेक्ट हिट होती तो नजदीकी मामला हो सकता था. कमलेश भाई थोड़े जो तेजी के साथ दौड़े थे, और अक्षय देखा जाए तो ऐसे बल्लेबाज है. कमलेश भाई शानी काफी अच्छा खेल रहे थे. 20 रन बनाए 22 गेंदों में.
सुंदर सा गेंद आ रही है इधर सीमा रेखा के ऊपर से और अहमदाबाद अंजनी 11 जिन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। अक्षय लखबीर जिनके सिक्सर के साथ ही अहमदाबाद अंजनी 11 जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। कमलेश भाई नॉट आउट वापिस लौट रहे हैं और ये मैच के परिणाम के साथ ही आज 8 मैच पूरे हुए हैं और सभी जो 8 मैच है इनके बाद उनका टाइम टेबल आने गया है। वो टाइम टेबल हम आपको बताएंगे। इससे पहले देखा जाए तो यहाँ एक ग्रुप में खेला जाएगा। ग्रुप में टाइम टेबल सेंड कर दिया जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। एबीपीएल सूरत 2025 ग्रुप में અને અબોટી